رات کا آخری پہر تھا جب وہ دانیال ملک کے ساتھ حویلی کے داخلہ دروازے پہ کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکنیں پل بھر کو رکی تھیں۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور روح کا عالم تھا۔ حویلی کی بڑی بڑی دیواریں خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ اس حویلی میں ونی ہو کر آئی تھی۔ ان لمبی لمبی دیواروں کے اس پار کیسے لوگ تھے، کیسی دنیا تھی، اس بات سے وہ بالکل انجان تھی۔ اپنے ظالم کزن کے قتل کی وجہ سے وہ سزا کے طور پر ونی ہو کر آئی تھی۔ اس کے خاندان والوں نے صفاقی کی انتہا کرتے ہوئے اس کو ونی میں دے دیا تھا۔ اب یہیں کھڑے رہنا ہے یا اندر بھی جانا ہے؟ تبھی دانیال ملک کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی تو وہ سوچوں سے باہر آئی۔ دانیال ملک گاڑی کی ڈگی سے سارا سامان نکال رہا تھا۔ وہ خاموشی سے شکستہ قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتی حویلی کا داخلی دروازہ عبور کر گئی۔ اندر بھی ہر طرف اندھیرا تھا۔ دانیال نے ہاتھ بڑھا کر ایک چھوٹی لائٹ آن کی تو حویلی روشنی میں نہا گئی۔ اس نے حیرت سے چاروں جانب دیکھا۔ حویلی انتہا کی خوبصورت تھی، ہر چیز نفاست سے رکھی گئی تھی۔ اس نے ستائشی نگاہوں سے اس حویلی کو دیکھا۔ کل آرام سے دیکھ لینا، ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور کمرے میں چلو، دانیال ملک نے اس کو پوری حویلی کو گھورتا دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ وہ لب کاٹتی اپنا بھاری سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں ایک کمرے کے سامنے کھڑے تھے۔ دانیال ملک نے چابی سے دروازہ کھولا اور سامان اندر رکھ کر لائٹس آن کی تو وہ بھی اندر آ گئی۔ کمرہ بھی حویلی جیسا ہی خوبصورت اور کشادہ تھا۔ اس نے حسرت سے اس کمرے کو دیکھا۔ کبھی ایسے کمرے میں رہنا اس کا خواب ہوا کرتا تھا، مگر یہ خواب اس طرح حقیقت کا روپ دھارے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھ دیا۔ دانیال ملک اسے چھوڑ کر واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے صوفے کی ایک سائڈ پہ ٹک گئی تھی۔ اب نہ جانے قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ اس نے دکھ سے سوچا، ابھی تو دانیال ملک کا رویہ سرد چادر اوڑھے ہوئے تھا، تو باقیوں کا کیا ہونا تھا؟ کیسے سہنا تھا، کیسے برداشت کرنا تھا اس کو؟ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس کو تاعمر کے لیے سزا سنا دی گئی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارا۔ اب یہیں پر بیٹھی رہو گی کہ ساری رات؟ اٹھو اور فرش پہ بستر لگا کر سو جاؤ۔ دانیال ملک جب شاور لے کر نکلا تو اس کو ایسے ہی بیٹھے دیکھ کر تڑک کر بولا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی، مگر بستر کہاں سے لاتی؟ وہ تو ساتھ بس اپنے کپڑے اور ضروری سامان ہی لائی تھی۔ یہ لو تکیہ اور چادر، اب سے فرش پہ ہی سونا، مجھے دوبارہ کہنا نہ پڑے۔ وہ حقارت سے تکیہ اور چادر اس کی جانب پھینکتا ہوا بولا۔ اس نے دھندی ہوئی آنکھوں سے تھام لیے اور فرش پہ بستر لگا کر لیٹ گئی۔ تبھی دانیال ملک نے اے سی کا ٹیمپریچر کم کر دیا، جس سے اس کو سردی لگنے لگی تھی، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی۔ "ہم کیا ہے تمہارا؟ میں بھول گیا۔" تبھی اس کی آواز آئی تھی۔ "جی سمن باجوہ۔" اس نے بمشکل لفظ ادا کیے تھے۔ سردی سے وہ کانپنے لگی تھی، مگر دانیال ملک کو احساس ہی کب تھا۔ "میری ایک بات کان کھول کر سن لو سمن باجوہ، اگر یہاں سکون سے رہنا چاہتی ہو تو ہر حکم پہ سر جھکانا، چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو، کیونکہ تم یہاں ونی ہو کر آئی ہو۔ اس بات کو مرتے دم تک دل سے نہیں بھولنا۔ اپنے اندر کا غبار وہ اس پہ نکال کر سو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے اور پھر صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے آنے کی خبر پوری حویلی میں پھیل چکی تھی۔ عابدہ بیگم کے اندر غصے کی چنگاریاں جلنے لگی تھیں۔ تبھی انہوں نے ایک ملازم کو کہہ کر اس کو بلوانے کے لیے بھیجا۔ وہ نیند میں تھی۔ جب اس کو دروازے پہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو وہ فوراً سے اٹھ کے بیٹھی اور دانیال ملک کی طرف دیکھا جو ابھی تک بے سود سویا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے درست کرتی اٹھی اور دوپٹہ اوڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے حویلی کا ملازم کھڑا تھا۔ "آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔" ملازم نے اس کو پیغام دیا تھا۔ "جی میں آتی ہوں، آپ چلیں۔" اس کو کہہ کر دروازہ بند کیا اور جلدی سے منہ دھو کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ قدم ڈگمگائے تھے۔ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ پر اعتمادی سے چلتی ہوئی عابدہ بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ "تو تم ہو ونی میں آئی ہوئی لڑکی؟" وہ کڑوے لہجے میں بولی۔ "جی جی۔" اس نے مجرموں کی طرح سر جھکا کر کہا۔ "پھر جانتی بھی ہوگی کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟" وہ چبا چبا کر اس کو گھورتی ہوئی بولی۔ "جی جانتی ہوں میں سب۔" اس نے ہولے سے کہا تھا۔ عابدہ بیگم نے اس کو بغور دیکھا۔ "چلو یہ تو اچھی بات ہے، ہمیں تم پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اب اس حویلی کا سارا کام تم کرو گی، حویلی کی ساری صاف صفائی سے لے کر کچن کے تمام معاملات تک سنبھالو گی، اور مجھے کوئی کوتاہی ملی تو یاد رکھنا تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تمہاری 7 پشتیں بھی یاد رکھیں گی۔" آخر میں ان کا لہجہ پتھریلا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ "جی ٹھیک ہے۔" اس نے ہر حکم پہ سر جھکایا تھا۔ عابدہ بیگم نے ایک ملازمہ کو آواز دی، "اس لڑکی کو لے جاؤ اور ساری حویلی دکھا کر سارے کام سمجھا دو۔ مجھے کوئی شکایت ملی تو اس لڑکی کے ساتھ تمہیں بھی بھون ڈالوں گی۔" وہ بگڑے تیور لیے بولی تھی۔ سمن خاموشی سے اس ملازمہ کے ساتھ چل دی تھی اور پھر اس نے سارے کام سنبھال لیے تھے۔ حویلی کے سارے افراد کے کام اس کے ذمے تھے۔ صفائی ستھرائی سے لے کر کچن کے کھانوں، ناشتوں اور برتنوں تک اس کی ذمہ داری تھی۔
اس نے خاموشی سے اپنی ساری ذمہ داریاں قبول کر لی تھیں۔ وہ خود پہ مضبوط خول چڑھائے کاموں میں جٹ گئی۔ وہ مزید خود پہ زندگی تنگ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابھی بھی وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ نیا حکم صادر ہو گیا۔ آپ دانیال صاحب کے کپڑے استری کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں برتن بعد میں دھو لینا۔ ایک ملازمہ نے آ کر کہا تو وہ برتن چھوڑ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ لو، یہ کپڑے استری کر دو، جلدی مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ دانیال ملک اسے کپڑے تھما کر خود واش روم میں چلا گیا۔ وہ جلدی سے کپڑے لے کر استری اسٹینڈ کے پاس آ گئی اور جلدی سے استری کرنے لگی۔ استری کم اسپیڈ پر کپڑوں کی سلوٹیں سیدھی نہیں کر رہی تھی تو اس نے اسپیڈ بڑھا دی۔ تبھی کپڑے ہائی اسپیڈ پر چپک گئے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے کپڑوں کو استری سے الگ کیا تو اس جگہ سے کپڑے پھٹ گئے۔ کپڑے اس کے ہاتھ میں کانپ کر رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ صدمے سے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ کیا کیا جاہل لڑکی، کپڑے جلا دیے میرے؟ تبھی پیچھے سے دانیال دہاڑا۔ وہ سہم گئی۔ وہ جان کر نہیں کہ یہ غلطی سے ہو گئے۔ وہ اپنے ڈر پہ قابو پاتے بمشکل بولی، کیا غلطی سے ہو گئے؟ تم نے میرے کپڑے جلا دیے۔ وہ اس کو بازو سے پکڑتے بفر گیا تھا۔ معاف کر دیں سائیں۔ وہ اپنی کلائی چھڑواتی رو دینے کو تھی مگر دانیال نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کر دیا جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین پہ اوندھے منہ جا گری۔ آئندہ ایسی غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچو گی تم، وہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے سسک پڑی، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ دانیال ملک نے اس کو بازو سے پکڑ کر باہر کی جانب دھکیلا تھا۔ وہ زور سے دروازہ بند کر دیا۔ سمن اپنی بے بسی پہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بہت افسوس ہوا لڑکی، بہت افسوس۔ تبھی فائزہ جو دانیال ملک کی کزن تھی اور اس سے محبت بھی کرتی تھی اس کی جانب آئی۔ سمن سے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی مگر بے رحم بھی۔ تمہارا یہی حل ہونا چاہیے، تم نے میرا حق مارا ہے، فائزہ اس کا منہ دبوچ کر نفرت سے بولی تھی۔ سمن کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے آپ کا حق نہیں مارا، وہ دکھ سے بولی تھی۔ وہ تو اس کو جانتی تک نہ تھی، پھر کیسے اس کا حق مار سکتی تھی؟ بکواس بند کرو اپنی، تم ہی میری محبت کی قاتل ہو، وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ سمن بے بسی کی تصویر بن کر رہ گئی تھی۔ کیا کہتی وہ؟ اس کی تو کسی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ فائزہ اس پر اپنا غصہ اتار کر جا چکی تھی۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ مزید اپنی ذات کا یہاں کھڑے رہ کر تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب اس کو کسی کے آنے کی آوازیں آئیں۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جلدی سے کھانا تیار کرو مہمانوں کے لیے، ایک ملازم نے آ کر کہا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ مدد کے لیے کوئی بھی ملازم نہیں تھا، اس لیے اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے 4 ڈشز تیار کر لی تھیں۔ اس نے جا کر ڈائننگ ٹیبل پر برتن سیٹ کیے اور واپس کچن میں آ گئی۔ یہ سب میں لے جاتی ہوں، بیگم صاحبہ نے تمہیں مہمانوں کے سامنے آنے سے منع کیا ہے۔ وہ کھانے کی ڈشز لے جانے لگی تھی کہ اس کو ملازمہ نے روک دیا۔ اس نے خاموشی سے برتن واپس رکھ دیے۔ ملازمہ سارا کچھ لے جا چکی تھی۔ وہ وہیں کچن میں پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کا بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ دوسری جانب جب کھانا دسترخوان پر پیش کیا گیا تو اس میں تھوڑی نمک کی کمی رہ گئی تھی۔ مہمانوں نے بس ہلکا سا تبصرہ کیا مگر دانیال کے چہرے پر غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ جیسے ہی مہمان چلے گئے دانیال نے غصے میں کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اسے دیکھ کر لرز گئی۔ دانیال ملک کے چہرے پر سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے سمن کو بازو سے پکڑا اور جھٹکا دیا۔ تمہیں بار بار کہا ہے کہ اگر سکون سے رہنا ہے تو ہمارے مطابق چلو، تم اپنی منمانی کرنے پہ تلی ہو۔ ہماری عزت تمہارے جیسے پھوڑ لڑکی کی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ سمن نے بے بسی کے عالم میں نظر اٹھائی مگر دانیال ملک کے چہرے پر ایک عجیب وحشت تھی۔ اس نے زور سے سمن کو دھکا دیا جس سے وہ فرش پر جا گری۔ اس کے ہاتھوں اور کوہنیوں پر زخم آ گئے تھے مگر اس نے کوئی آواز نہ نکالی، بس خاموشی سے اپنے درد کو برداشت کرتی رہی۔ دانیال کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں تھیں۔ تمہاری حیثیت یہی ہے، تم جیسی لڑکیاں دوسروں کو شرمندہ کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو اپنی اوقات میں رہو۔ وہ غرایا تھا۔ سمن نے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس کے جسم پر زخم لگے تھے مگر دل کے زخم اس سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ وہ دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہی۔ جب رات ہوئی تو اسے بخار سا محسوس ہوا مگر کسی نے اس کی حالت پر توجہ نہ دی۔ وہ اپنے کمرے میں تھوڑی دیر آرام کرنے چلی گئی تاکہ اگلی صبح پھر حویلی کے کاموں میں جٹ سکے۔ اسی وقت دانیال کچن سے پانی لینے کے لیے آیا مگر سمن وہاں نہیں تھی۔ اس نے پوری حویلی میں اس کو تلاش کیا اور اسے کمرے میں لیٹا دیکھ کر اس کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ تمہیں یہاں آرام کرنے کے لیے کس نے کہا؟ سمن نے بمشکل آنکھیں کھولی اور اٹھنے کی کوشش کی مگر دانیال نے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھا دیا۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہاں ہر کام وقت پر ہونا چاہیے؟ تم جیسے لوگ بس آرام کرنا ہی جانتے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا چہرہ غم اور بے بسی کا آئینہ بن گیا۔ اس کے جسم پر بخار کی شدت تھی مگر دانیال کو اس کی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہ تھا۔ وہ اسے سخت لہجے میں حکم دیتے ہوئے کچن میں لے گیا۔ اب اگر تم نے دوبارہ آرام کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ کہہ کر جا چکا تھا
वो रात के पिछले पहर आंसू बहाते हुए किचन में काम कर रही थी। आबदा बेगम को दिली सुकून मिला था ये सब देखकर। पास से गुजरती फायजा हंसते हुए किचन में आई थी। वैसे जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तुम इसके ही काबिल हो, वो समन का तमस्खर उड़ाते हुए बोली थी। वो खामोशी से काम करती रही, भला उस लड़की को वो क्या कहती जो बिला वजह उससे बेर ले रही थी। तभी फायजा ने शेल्फ पर पड़े शीशे के गिलास उठाकर जमीन पे दे मारे। समन सहम के पीछे हुई थी। बेवकूफ लड़की, क्या किया? कोई काम ढंग से नहीं आता। फायजा खुद ही गिलास तोड़कर अब ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो चुकी थी। समन उसकी साजिश समझ चुकी थी। ये क्या किया? अंधी हो क्या? तुम्हारे बाप का घर है जो यहाँ तोड़-फोड़ कर रही हो? आबदा बेगम गिलास टूटने की आवाज सुनकर उस पर चढ़ दौड़ी थी। वो बेबसी से लब काट कर रह गई। अब उनको क्या बताती? यकीन तो वो कभी ना करती, मगर और जरूर उसको जलील कर देती। उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। अब खड़ी-खड़ी मुंह क्या देख रही हो? उठाओ, सब साफ करो जगह। वो उसको कहरबार नजरों से देखते हुए बोली। फायजा उसको जलील करवा के चुपके से निकल चुकी थी। वो कांच के बिखरे टुकड़े उठाने लगी। वो कमरे में आकर अपना बिस्तर लगाने लगी। दानियल खामोशी से अपना फोन इस्तेमाल कर रहा था। अचानक उसकी आवाज पे पलटी थी। जी, उसने मुड़कर कहा था। दानियल ने फोन साइड पे रखा। इधर आकर मेरे पाँव दबाओ, उसने हुक्म सादिर किया था। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पैरों के पास आकर जमीन पे बैठ गई और उसके पैर दबाने लगी। दानियल मलिक जो सुबह का थका हुआ था, पैरों को थोड़ी राहत मिलते देखकर नींद की वादियों में जाने लगा। समन मुसलसल उसके पैर दबा रही थी। सुबह की वो भी थकी हुई थी। उसकी आंखों में भी नींद उतर आई थी, मगर वो बिना रुके उसके पैरों को दबाती रही। तभी दानियाल ने अपने पैर जोर से खींचे थे। वो डर के पीछे हुई। दफा हो जाओ, मुझे नींद आ रही है। रोज ही मेरे कहे बगैर मेरे पैर दबाने आ जाया करना, वो आंखें बंद किए ही बोला था। वो खामोशी से सर हिलाकर उठ गई और जाकर लेट गई। बिस्तर पे लेट के वो अपने और इस हवेली के लोगों के रवैयों के बारे में सोचती चली गई। हवेली की दूसरी खवातीन भी उसके साथ सख्त रवैया अपनाए हुई थी। वो जब काम खत्म करके सांस लेने को बैठती तो फौरन एक नई जिम्मेदारी उसके हवाले कर दी जाती। कभी कभी तो उसे खाना खाने का वक्त भी ना मिलता। जब वो थकी हुई अपने कमरे में वापस आती तो रात के सन्नाटे में चुपके से अपने गम को आंसू में बहा देती। उसका वजूद इस हवेली में जैसे मुसलसल आजमाइश का शिकार था। हर रोज उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता था जैसे वो कोई बेजान चीज हो, जिसके जज्बात और एहसासात की कोई कदर न हो। उसकी हर सुबह कठिन दिन के आगाज के साथ होती और रात थकन से चूर जिस्म और दिल के साथ इख्तिताम पजीर होती। उसने कभी ऐसी जिंदगी का ख्वाब तस्वुर में भी न किया था। हर तरफ नफरत ही नफरत थी, धुतकार ही धुतकार थी। उसका कसूर बस इतना था कि वो कातिल की बहन थी। सुबह वो उठी, शावर लेने गई तो कोई भी नल काम ना करे। किसी में भी पानी नहीं आ रहा था। उसने बाहर जाके देखा तो बाहर सबके नलकों में पानी आ रहा था। वो लब काटती वापिस आ गई। उसने फिर से वॉशरूम में आकर कोशिश की कि शायद अब कोई चल जाए, मगर फिर भी किसी नल से पानी न आया। वो चारों नाचार दानियाल मलिक के पास गई जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वो बात सुने, उसने हिचकिचाते हुए उसे पुकारा था। दानियाल मलिक ने रुख मोड़कर उसकी जानिब देखा जो उलझी हुई नजर आ रही थी। बोलो, क्या बात है? वो उसको बगौर एक नजर देखकर वापस अपनी तैयारी में मसरूफ हो गया। वो वॉशरूम का कोई नल काम नहीं कर रहा, किसी में पानी नहीं आ रहा। वो उंगलियों को चटकाते हुए बोली, क्या? अभी तो मैं बात लेकर निकला था, तब तो आ रहा था, अचानक से क्या हुआ? उसने हैरानी से कहा और फौरन वॉशरूम की जानिब बढ़ा। समन भी उसके पीछे वॉशरूम में आ गई। दानियाल मलिक सारे नल चेक कर रहा था, मगर किसी में पानी नहीं आ रहा था। तभी दानियाल ने एक नल को घुमाया और छन से सारे नल में पानी आ गया। वो जो शावर का नल जो खुला था, उसके नीचे समन खड़ी थी। वो मुकम्मल तौर पे भीग गई। दानियाल जल्दी से नल को बंद करने के लिए आगे बढ़ा था कि उसका पाँव स्लिप हुआ और वो भी समन के साथ मुकम्मल तौर पर भीग गया। पागल लड़की, तुमने मेन नल बंद कर दिया था, उसकी वजह से किसी नल में पानी नहीं आ रहा था। बेवकूफ लड़की, मेरे भी सारे कपड़े खराब कर दिए, ऑफिस जा रहा था मैं। वो अपनी सारी गलती उस पर डालता हुआ तड़क कर बोला था। समन बेबसी से अपनी भीगे कपड़ों को देखने लगी जो मुकम्मल तौर पर भीग कर उसके जिस्म से चिपक गए थे। तभी दानियाल की उसके भीगे कपड़ों पर निगाहें गईं तो वो फौरन उससे पीछे हुआ। वो शर्म के मारे निगाहें झुका गई। दानियाल ने बगौर उसकी झुकी पलकों को देखा था। चेहरे पे हया की सुर्खी छाई हुई थी। बाहर जाओ, अब मुझे कपड़े चेंज करने दो, सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। अब वो उसको नजरअंदाज करता अपनी भीगी हुई शर्ट को दोबारा उतारने लगा। समन फौरन से वॉशरूम से निकलकर कमरे में आ गई। वो फौरन से ड्रेसिंग रूम में गई और वहां जाकर अपनी भीगे हुए कपड़े उतारकर सूखे पहने। बाहर आके अपने गीले बालों को सुलझाने लगी जो मुकम्मल तौर पे भीगे हुए थे। दानियल भी बाहर आ चुका था और ड्रेसिंग से अपना ब्रश उठाकर बालों में फेरने लगा। ध्यान से काम किया करो, हर दफा तुम पे रहम नहीं खाया जाएगा। वो आईने में उसके अक्स को देखता हुआ सर्द लहजे में बोला था। ये आइंदा से ध्यान रखूंगी, वो होले से कहकर कमरे से निकल गई थी। तुमने उस लड़की पे झूठा इल्जाम लगाकर उसे बेइज्जत क्यों करवाया? फायजा फोन में मगन थी जब मायदा ने आकर उसको सख्त लहजे में कहा था। कौन सा इल्जाम? वो हैरत से बोली, फिर कुछ याद आने पे तंजी अंदाज में हंस दी। आगे आगे देखो मैं करती क्या हूँ। उसने मेरी जगह ली है, मैं उसकी जिंदगी उस पर तंग कर दूंगी।
तो मेरा नाम भी फ़ायज़ा मलिक नहीं। वो शफ़ाक़ियत से बोली थी। मायदा बहन को ताज्जुब से देखकर रह गई। क्यों तुम बिलावजह उससे बेड़ ले रही हो? वो कौन-सा अपनी मर्ज़ी से आई है? बेचारी बनी होकर आई है। मायदा ने उसको अफ़सोस से देखकर कहा। जो भी है, मगर मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती। उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है। मैं उसका वजूद मिटा दूँगी। वो जुनूनी अंदाज़ में बोली थी। बस कर दो फ़ायज़ा। आगे ही उस मासूम पे कम ज़ुल्म होता है जो तुम भी हिस्सेदार बन रही हो। मायदा ने उसका ज़मीर जगाना चाहा था, मगर वो और भी भर गई। तुमने मोहब्बत की होती ना, तो फिर मैं तुमसे पूछती कैसा लगता है अपनी जगह किसी और को देखकर। फ़ायज़ा ने जज़्बात की रो में बहकर कहा, मुझे अगर मोहब्बत होती ना फ़ायज़ा, तो मैं कभी मर कर भी तुम्हारी तरह ना करती, क्योंकि तुम जो कर रही हो, वो जो आगे करना चाहती हो, वो सरासर ज़ुल्म और ज़्यादती है। मायदा ने साफ़गोई से बहन को आईना दिखाया था। तुम मेरे मामले से दूर रहो, मुझे तुम्हारी किसी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं। वो मायदा की बातों से मुश्तइल होती वापस फ़ोन में मगन हो गई थी। ठीक है, नहीं बोलती कुछ, मगर तुम थोड़ा-सा उस पर रहम खाओ। वो तुम्हारी मुजरिम नहीं है, बल्कि जो सब इस हवेली में उसके साथ कर रहे हैं, वो सब उसके मुजरिम हैं। कोल्हू के बेल की तरह उससे इतनी बड़ी हवेली का काम करवाते हैं। प्लीज़, उन ज़ालिमों के साथ तुम भी पिस जाओगी। बाज़ आ जाओ फ़ायज़ा, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। वो आखिरी बार अपनी बहन से कहकर कमरे से निकल गई थी, मगर फ़ायज़ा के दिलो-दिमाग पे कोई असर न हुआ था। वो अभी शफ़ाक़ियत के साथ डटी थी। वो जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगी। उसको आज देर हो गई थी। नाश्ते का सब इंतज़ार कर रहे थे। उसने जल्दी-जल्दी हाथ चलाए और पराठे, चाय, ऑमलेट वगैरह बनाकर डाइनिंग टेबल पे ले आई। वहाँ सब हवेली के अफ़राद मौजूद थे। आबदा बेगम ने उसको सख्त निगाहों से घूरा। आज इतनी देर क्यों कर दी? पता है ना सब नाश्ते का कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वो गुस्से से बोली। नाश्ते की टेबल पे बैठे दानियाल मलिक, आलियान और मलिक साहब और जावेद मलिक और बाकी सब ने उसकी जानिब देखा था। वो शर्मिंदगी से सर को झुका गई और खामोशी से नाश्ता टेबल पे लगाकर खुद किचन में जाकर नाश्ता करने लगी। तभी आलियान, दानियाल मलिक का छोटा भाई, किचन में दाखिल हुआ। आप क्यों आ गए? छोटे साहब, मुझे कह देते। वो फौरन से नाश्ता छोड़कर खड़ी हो गई थी। आलिया ने एक नज़र उस मासूम लड़की को देखा जो जब से आई थी मुसलसल आजमाइश का शिकार थी। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, मुझे गर्म पानी चाहिए था, इसलिए मैं खुद ही आ गया। आप आराम से नाश्ता करें। वो कहकर खामोशी से ओवन में पानी गर्म करने लगा। समन उसे देखती रही। उस घर के अफराद में से पहली बार किसी ने उससे इस कदर एहतराम और नर्म लहजे में बात की थी। उसकी आंखों में नमी सी उतर आई थी। बैठ जाएं भाभी, नाश्ता कर लें, मैं खा नहीं जाऊंगा आपको। उसको मुसलसल खड़ा देखकर उसने मुस्कुरा के मीठा सा तंज किया था। वो सटपटा गई। वो ओवन से गर्म पानी निकाल कर ले जा चुका था। वो भी वापस बैठकर फिर नाश्ता करने लगी। दानियल ऑफिस के लिए गाड़ी में बैठा ही था कि फ़ायज़ा भागते हुए उसकी जानिब आई। दानियल मलिक ने उसको सख्त नज़रों से घूरा था। उसको बिल्कुल भी उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई थी। वो, दानियाल, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ देंगे? वो गहरे-गहरे सांस लेते हुए बोली थी। भागकर आते हुए उसकी सांस फूल चुकी थी। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे दानियल कहकर मत बोला करो, भाई कहकर बुलाया करो। दानियल मलिक स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए चबा-चबा कर बोला था। और मैंने भी आपसे कितनी बार बोला है कि मैं आपको अपना भाई नहीं मानती। वो भी तब करदू-बदू बोली थी। दानियल मलिक मारे इश्तियाल के बुरा हाल हो गया था। वो कुछ सख्त कहने ही वाला था, तभी आलियान आ गया। फ़ायज़ा आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, भाई को लेट हो रही है। आलिया ने अपनी गाड़ी फ़ायज़ा के पास खड़ी करते हुए बोला था। नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, वो हठधर्मी से बोली थी। दानियल मलिक उसको कहर बार नज़रों से देखते हुए अपनी गाड़ी लेकर बैरूनी दरवाज़ा पार कर गया था। भाई तो चले गए, अब बताओ, अब भी नहीं जाना क्या? तुम्हें मेरे साथ? आलियान दानियल मलिक की गाड़ी को जाते हुए देखकर बोला था। वो सुलग उठी थी। दानियल मलिक का उसको नज़रअंदाज करना सख्त ज़हर लगा था। उसने घड़ी पे टाइम देखा। यूनिवर्सिटी में 20 मिनट स्टार्ट होने वाली थी। आज उसका एक इम्पोर्टेंट टेस्ट था, इसलिए वो चारों नाचार आलियान के साथ बैठ गई। आलिया ने अपनी फतह पे दिल खोलकर मुस्कुराया था। तो मिस, आप भाई के साथ क्यों जाना चाहती थी? शादीशुदा मर्द पे इस तरह डोरे डालना अच्छी बात नहीं। उसकी बात पर वो सर से पैर तक जल उठी थी। उसने घूर कर आलियान की जानिब देखा। तुम अपनी बकवास बंद रखो, मेरे मामलात में बोलने की जुर्रत मत करना। वो उंगली को उठाते उसको वार्न करते हुए बोली थी। उसको हमेशा अपने और दानियल मलिक के बीच बोलने वाला जहर लगता था। कब तक उनके पीछे भागती रहोगी फ़ायदा? छोड़ दो। वो तुम्हें पसंद नहीं करते, खुद को क्यों थका रही हो उनके लिए? उनकी शादी हो चुकी है अब। आलियान उसको आसानियत से समझाते हुए बोला था, जो उसकी पसंद से बखूबी वाकिफ था, मगर वो उसकी बातें सुनकर हत्थे से ही उखड़ गई थी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ आलियान, अपनी बकवास बंद कर लो, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो जुनूनी सी हो गई थी। आलियान उसको देखता रह गया। उसके पागलपन से वो अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुका था, मगर उसने उसके पागलपन को ठीक करने का एक बेहतरीन फैसला ले लिया था। वो फ़ायज़ा को दिल ही दिल में पसंद करता था, मगर जब उसको मालूम हुआ कि वो दानियल मलिक को पसंद करती है, तो वो खामोश हो गया। मगर अब जब दानियल मलिक की शादी हो गई थी और वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में रुकावट पैदा करना चाह रही थी, तो उसने फ़ायज़ा को खुद से मंसूब करने का सोच लिया था। वो पौधों को पानी दे रही थी जब दानियल मलिक की गाड़ी हवेली में दाखिल हुई। समन इस बात से अनजान खामोशी से पौधों को पानी देने में मसरूफ़ थी। दानियल मलिक समन को देखकर खामोशी से उसकी जानिब आया।
तभी समन ने पानी का रुख बदला था कि वो घास को भी थोड़ा सा पानी दे दे, मगर उसने अनजाने में सामने खड़े दानियल मलिक को मुकम्मल तौर पे भिगो डाला। वो अपने भीगे हुए कपड़ों को देखकर समन को अब खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वो अंदर तक लरस गई। दानियल मलिक के तेवर हद से ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वो डर के 2 कदम पीछे हुई। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, वो सहमे हुए अंदाज में बोली थी। दानियल मलिक ने उसको बाजू से जोर से दबोचकर अपनी तरफ खींचा। तभी उसके पैर पाइप से उलझ गए और वो धड़ाम से जमीन बोस हुआ था और उसके साथ ही समन भी हो चुकी थी। गीली घास पर अब उसकी सफेद शर्ट मुकम्मल तौर पर मिट्टी से लबरेज थी। दानियल मलिक का गुस्सा 7वें आसमान को पहुंच चुका था। आखिर तुम मुझे कितना टॉर्चर करोगी? सुबह भी मेरे कपड़े खराब कर दिए और अब भी मुझे मिट्टी से गंदा कर दिया। कितना टॉर्चर करना है मुझे? अब वो गुस्से से दहाड़ रहा था। समन डर के उसके ऊपर से उठने लगी कि फिर फिसलकर उसके ऊपर ही गिर गई। ये मंजर फायजा ने अपने कमरे की खिड़की से जब्त से देखा था। अब उठो मेरे ऊपर से, या यहाँ ही बिस्तर लगाना है तुमने? वो फुनकार रहा था। वो घबरा के उसके ऊपर से जमीन के सहारे उठी और फौरन अंदर की जानिब चली गई। पीछे दानियल मलिक उसको सलावतें सुनाता उठ खड़ा हुआ था। हवेली के मुलाजमिन ने छुपकर ये नजारा देखा था और फिर उसकी सूरत हाल पे हंस पड़े। अंदर आकर जल्दी से उसने शावर लिया था और फिर ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगी। दानियल मलिक ने भी अंदर आकर वॉशरूम का रुख किया और आधे घंटे बाद निकला था। तब तक वो भी अपना हुलिया दुरुस्त कर चुकी थी। दानियल मलिक टॉवल लपेटकर बाहर आया था। समन इसको देखकर सुर्ख पड़ी और कमरे से बाहर जाने लगी। रुको, मेरे कपड़े निकाल कर जाओ, तुम्हारी वजह से खराब हुए हैं। वो उसको याद दिलाना नहीं भूला था। समन ने खामोशी से सर झुकाए, उसके कपड़े निकाले और कमरे से जाने लगी कि फिर दानियल मलिक की आवाज आई थी। अंधी हो क्या? देखकर कपड़े नहीं निकाल सकती? इस शर्ट का बटन टूटा हुआ है। उसने शर्ट पहनते हुए टूटा बटन उसकी जानिब किया था। वो बेबसी से लब भींच कर रह गई। मैं दूसरी निकाल देती हूँ अभी। वो जल्दी से वापस अलमारी की तरफ आई। नहीं, कोई जरूरत नहीं, अब इसको ही ठीक करो। इधर आकर बटन लगाओ। दानियाल मलिक ने शर्ट उतार कर उसके मुंह पर फेंकी थी। मारे जिल्लत के उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। वो आंसू पीती शर्ट का बटन लगाने लगी, तभी बेध्यानी में सुई उसकी उंगली में चुभ गई थी। कोई काम तुम्हें ढंग से आता है भी कि नहीं? वो उसको घूर कर बोलता अपनी शर्ट उसके हाथ से खींच चुका था। जाओ, खुद ही लगा लूंगा मैं बटन, कोई काम ढंग से नहीं आता। वो उसको कड़वी कसेली बातें सुनाकर अब अपना बटन खुद लगा रहा था। उसने धुंधलाई हुई आंखों से उस दुश्मन जाँ को देखा और खामोशी से कमरे से निकल गई। सभी लोग आबदा बेगम के कमरे में मौजूद थे। आलिया ने आबदा बेगम से अपने और फायजा के रिश्ते की बात की थी, जिस पर उन्होंने रजामंदी जाहिर करते सबको इसी बात के लिए अपने कमरे में बुलाया था। आलियान और दानियाल मलिक साहब, जावेद मलिक और उनकी जोजाएं सब कमरे में मौजूद थीं। मैंने एक अहम फैसला करने के लिए तुम सबको बुलाया है। मुझे उम्मीद है तुम सब इस फैसले पर सर झुकाओगे। आबदा बेगम की इस बात पर सबने उनकी तरफ देखा था। जी जी माँ जी, आप जो भी फैसला करेंगी वो हमारे हक में बेहतर होगा। मलिक साहब माँ की बात पर ताबदारी से बोले थे। हाँ, तो इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आलियान और फायदा की बात तय कर दी जाए। वो दो टोक अंदाज में बोली थी। सभी ने हैरत से उनकी जानिब देखा था, सिवाय आलियान के। मगर माँ जी, आप जानती हैं फायदा आलियान से 2 साल बड़ी है, तो फिर किस तरह ये रिश्ता तय पाएगा? आलियान की माँ नाजिया बेगम ने मुदाखलत की थी, तो आबदा बेगम ने उनको घूरी से नवाजा। तो वो सर झुका गईं। माँ जी, हमें आपका फैसला मंजूर है, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। मलिक साहब ने ताबेदारी से आबदा बेगम के हुक्म के आगे सर झुका दिया था। जी माँ जी, मुझे भी आपके इस फैसले पर कोई एतराज नहीं है। जावेद साहब ने भी उस रिश्ते को कबूलियत की संद बख्श दी थी। उनकी बात पे बाकी सब भी मुतफिक हो गए थे। दानियाल मलिक को भी यही बेहतर लगा। उसने भी सबकी हाँ में हाँ मिला दी। फायजा की हरधर्मी वो पहले ही देख चुका था। ठीक है, फिर शादी की तैयारियां करो, एक माह में उन दोनों का सादगी से निकाह कर देंगे। आबदा बेगम ने दूसरा हुक्म सादिर किया था। मलिक जावेद और मलिक साहब ने खामोशी से सर झुका दिया। दोनों भाइयों में एक मजबूत रिश्ता जुड़ने जा रहा था। वो मुतमईन थे। आप सब अब अपने अपने कमरे में जा सकते हैं। आबदा बेगम ने अपनी बात मुकम्मल करके उन सबको जाने की इजाजत दे दी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता उनका कमरा खाली हो गया। वो और आलियान रह गए थे। थैंक यू दादू, आप बहुत अच्छी हैं। आलियान आबदा बेगम का हाथ चूमते हुए मोहब्बत से बोला था, तो वो भी होले से मुस्कुरा दी। आलियान उनका लाडला पोता था, फिर वो कैसे उसकी बात को टाल सकती थी? और फिर जब ये रिश्ते की खबर फायदा तक पहुंची थी, वो पागल सी हो गई थी। कमरे की सारी चीजें उठा उठा कर फेंक रही थी। वो कैसे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर सकती हैं, वो भी मुझसे पूछे बगैर? किसने हक दिया उनको? वो पागलों की तरह खुद को नोच रही थी। मायदा ने तासुब से अपनी बहन को देखा। तो फिर किससे शादी करना चाहती हो? दानियाल भाई से, जिनकी पहले ही शादी हो चुकी है। मायदा गुस्से से बोली थी। उसको फायजा इस वक्त सख्त जहर लग रही थी, जो इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही थी। हाँ हाँ, मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। मैं दानियाल के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, वो चीखते हुए बोली थी। तभी नौरीन बेगम कमरे में दाखिल हुई। ये क्या कमरे का हशर बना रखा है? फायजा, तुम पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? नौरीन बेगम फायजा को इस तरह से चीजें फेंकते हुए देखकर धड़क कर बोली थी। उनको बेटी की हठधर्मी एक आंख नहीं भाती थी। अम्मी, अम्मी, आपने ये सब कैसे होने दिया? आप जानती हैं ना मैं दानियाल से कितनी मोहब्बत करती हूँ, फिर आपने कैसे आलियान का रिश्ता कबूल कर लिया? वो उनके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए बोली थी। नौरीन बेगम ने सख्त नजरों से उसकी जानिब देखा। तुम पागल हो क्या?
اس کی شادی ہو چکی ہے، ابھی بھی اس کے پیچھے پڑی ہو؟ چھوڑ دو جان اس کی، اور یہ جو رشتہ طے ہوا ہے خاموشی سے شادی کر لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ذلیل نہ کرانا مجھے اور اپنے ماں باپ کو سب کے سامنے۔ وہ فائزہ کو جھنجھوڑ کر بولی تھی جو اپنے ساتھ انہیں بھی پریشان کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ نہیں امی نہیں، میں کسی بھی حال میں شادی نہیں کروں گی، دیکھ لینا شادی والے دن بھاگ جاؤں گی میں گھر سے، میں دانیال کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ سنا آپ لوگوں نے؟ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخی تھی۔ نورین بیگم کا اچانک اس پہ ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے گالوں پہ نشان چھوڑ گیا۔ معاہدہ نے حیرت سے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تمہاری شادی آریان سے ہی ہوگی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگی۔ اگر تم نے کوئی بھی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہاری ہڈیاں توڑ کر میں اسی کمرے میں ڈال دوں گی، سمجھی؟ نورین بیگم اسے وارن کر کے جا چکی تھی۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے سسک پڑی۔ معاہدہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی اور پھر خاموشی سے فائزہ اور عالیان کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ لب بھینچ کر اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی مگر عالیان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھی اور جا کر سادہ سا سوٹ زیب تن کر کے لیٹ گئی۔ شادی کے ہنگاموں سے اس کا بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ وہ فوراً سے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عالیان بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کو سویا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے، واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ خود کو تازہ دم کرنے کے بعد وہ فائزہ کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا جو سوئی ہوئی معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ اس کی سفید رنگت میں گلابی پن تھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کافی دیر تک روتی رہی ہے۔ عالیان نے آہستہ سے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی خوشبو اس کو اور مسرور کر رہی تھی۔ جذبات انگڑائیاں لے کر بیدار ہوئے تھے اور وہ اس کی ملائم سی گردن پہ جھک گیا۔ فائزہ اس کے لمس پہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ شیرنی کی طرح دہاڑی تھی۔ عالیان نے اس کو ناگواری سے دیکھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو فائزہ، اب میں تمہاری بدتمیزی بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے بولا۔ کیا کر لو گے تم بتاؤ، کیا کر لو گے؟ نہیں، تمیز سے بات نہیں کروں گی، وہ ضدی پن سے بولی۔ عالیان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے کھینچ کر اس کو اپنی جانب کیا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ فائزہ نے اس کے سینے پر زور سے مکے مارتے ہوئے اس کو خود سے دور کرنا چاہا مگر عالیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب بتاؤ، کروں گی تمیز سے بات یا نہیں؟ اس کو بے بسی سے پھڑپڑاتے دیکھ کر عالیان نے کہا تھا۔ نہیں کروں گی تمیز سے بات، تم جیسے گھٹیا انسان سے کبھی بھی تمیز سے بات نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹی رہی تھی۔ عالیان نے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا سوچ لیا تھا۔ اس نے زور سے فائزہ کو بیڈ پہ پھینکا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ فائزہ کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں۔ نہیں عالیان، خبردار جو میرے قریب آئے، میں جان سے مار دوں گی تمہیں، وہ خوف سے چیخی تھی مگر عالیان نہیں رکا تھا۔ آج وہ اس کے سارے بل کس دینا چاہتا تھا۔ عالیان اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے اسے بیڈ سے پن کر چکا تھا۔ پلیز عالیان نہیں، میں بڑی ہوں تم سے، ایسے مت کرو، وہ بے بسی سے التجائی لہجے میں بولی۔ عالیان نے طنزیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا اور منہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ فائزہ نے چیخیں مارنی چاہی تھی مگر عالیان نے اس کے اندر ہی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ سمن بخار میں تپ رہی تھی۔ شادی کے کام کا سارا بوجھ اس پہ تھا جس کی وجہ سے آج اس کی نازک جسم اتنا سہن نہ کر پایا۔ وہ زمین پہ لیٹے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ دانیال ملک جیسے ہی اندر آئے اس کو کانپتے دیکھ کر رکا، پھر قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اس نے چادر ہٹا کر دیکھا تھا تو سمن سمٹ کر لیٹی کانپ رہی تھی۔ دانیال ملک نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ وہ تیز بخار میں پھونک رہی تھی۔ دانیال نے جلدی سے اس کو اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پہ لٹا دیا۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر اس کو چیک کر کے چلا گیا تھا مگر اس کا بخار ابھی تک نہیں اتر رہا تھا۔ اس نے اس کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنا شروع کی، پھر آہستہ آہستہ اس کی بخار کی شدت کم ہونے لگی تھی۔ دانیال ملک نے سکون کا سانس لیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے غور سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں صدیوں کی تھکن تھی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی تو اس کی صحت بالکل ٹھیک تھی مگر ابھی کچھ مہینے ہی اس کو گزرے تھے یہاں پر کہ اس کے چہرے پر ہڈیاں نظر آنے لگی تھیں۔ سمن کو اس حالت میں دیکھ کر دانیال ملک کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیوں وہ اس کو اس گھر والوں کو معصوم لڑکی پر ظلم ڈھا رہے تھے؟ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ وہ تو بے قصور تھی۔ جس نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا وہ تو آزاد گھوم رہا تھا اور عمر بھر کی قید تو اس معصوم لڑکی کو سنا دی گئی تھی۔ وہ تو اس کے بھائی کو جانتی تک نہیں تھی، نہ کبھی دیکھا تھا، پھر کیسے وہ اس کے بھائی کی قتل کی سزا کاٹ رہی تھی؟ کولوں کی بیل کی طرح اس سے دن بھر سارا کام لیا جاتا تھا۔ نفرت، دھتکار، چپتی ہوئی نگاہیں، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لیے اس حویلی میں جو وہ خاموشی سے لپسی سب کچھ سہ رہی تھی۔ اس کے منہ سے کبھی ایک لفظ بھی شکوے کا نہیں سنا تھا۔ دانیال ملک کے دل کو پچھتاووں نے آ گھیرا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی ایک دم بڑھی تھی، اس کے دل کی شفافیت ایک دم رحم دلی میں بدلی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کی گرم پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے تھے۔ دل میں جیسے ایک عرصے بعد سکون اترا تھا۔ اس کا لمس اس کو کسی خوبصورت دنیا میں لے گیا تھا جہاں سکون ہی سکون تھا، کوئی تشنگی، کوئی پیاس نہ تھی۔ اس نے سمن کو خود میں بھینچ لیا اور تڑپ کے رو دیا اپنی سختیوں پہ۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بیڈ پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ عالیان ڈنکے کی چوٹ پہ اس سے اپنا حق لے چکا تھا۔ صبح کے سائے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ وہ اٹھی اور درد سے چور اپنے وجود کو گھسیٹ کر واش روم میں بند ہو گئی۔
थोड़ी देर के बाद निकली तो वो काफी बेहतर लग रही थी, मगर आंखों की सुर्खी हनूज कायम थी। उसने अपने बालों को ड्राई किया और सर पे दुपट्टा ओढ़कर अपने साबका कमरे की जानिब बढ़ गई। अपने कमरे में आते ही वो शिद्दत से रोती थी। आज तक उसने अपना आप दानियल मलिक के लिए संभाल कर रखा था, जिसको आलियान मलिक ने बेदर्दी से रोंद दिया था। उसने मोहब्बत जो खोई सो खोई थी, अपनी जात का गुरूर भी गंवा दिया था। उसका दिल चाह रहा था कि वो आलियान के टुकड़े टुकड़े कर दे, जिसने उसकी ये हालत कर दी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मायदा उसको अपने कमरे में देखकर हैरान हुई थी। मेरा कमरा है, मैं जब चाहे आ सकती हूँ, वो रुंधी हुई आवाज में बोली थी। मायदा ने गहरी सांस ली थी। वो उसके साथ ही आकर बैठ गई। क्यों कर रही हो ऐसे? कबूल क्यों नहीं कर लेती इस रिश्ते को? आलियान बहुत अच्छा इंसान है, खुश रखेगा तुम्हें, वो नर्म लहजे में फायजा को समझाते हुए बोली थी। मगर शायद वो समझना ही नहीं चाहती थी। अच्छा इंसान नहीं है वो, उसने कल रात मेरे साथ, कहते हुए वो लब काट कर रह गई थी। जो भी किया है ठीक किया है, तुम उसकी बीवी हो फायजा, उसका हक है तुम पे। तुम जिस तरह से उसके साथ बदतमीजी करती हो, उसकी जगह और कोई होता तो कभी भी बर्दाश्त न करता। मायदा ने उसको आईना दिखाया था। वो दुखी होते हुए अपना रुख मोड़ गई थी। उसको आलियान की तरफदारी जरा भी पसंद न आई थी। प्लीज फायजा, अपनी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाओ, कबूल कर लो इस रिश्ते को। अगर तुम उसके साथ ठीक रहोगी तो वो भी तुम्हारे साथ ठीक रहेगा। प्लीज अपने लिए और मुश्किलें पैदा मत करो। हम हवेली की लड़कियां हैं, यहाँ पे तलाकें नहीं होती, सीधा जिंदा दफन करना पसंद करते हैं। तुम क्यों इस तरह से करके अम्मी अब्बू की इज्जत को खाक में मिलाना चाहती हो? तुम्हारा इस तरह का रवैया और हाल देखकर मुलाजिम क्या सोचेंगे? मायदा उसको गले से लगाए नरमी से बोलती जा रही थी। अब की बार फायजा के दिल पर उसकी बातें असरअंदाज हुई थीं। फायजा की आंखें लबलब पानियों से भर गई थीं। चलो शाबाश, अब अपने कमरे में जाओ और आलियान के साथ ही नीचे नाश्ते की टेबल पर आना। मायदा की बात सुनकर वो खामोशी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। मायदा ने उसकी बात मान लेने पे शुक्र किया था। आपको बेगम साहिबा कह रही हैं कि कुएं से पानी जाकर निकाल कर लेकर आएं। वो किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी जब मुलाजमा ने आकर उसको पैगाम दिया। मगर मैं कैसे? मुझे कुएं से पानी ही नहीं निकालना आता, उसने बेबस लहजे में कहा था। तो कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ पानी कैसे निकालते हैं, फिर तुम पानी निकाल लेना। समन उसकी बात पे इस बात में सर हिलाती उसके साथ चल पड़ी। वो हवेली की दूसरी साइड पर आ गई थी, जहाँ पे बड़ा सा कुआं बना हुआ था। पहली बार वो उस कुएं को देख रही थी, वरना उसको कभी भी यहाँ आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। ये देखो, ये बाल्टी है, उसको तुमने कुएं में फेंकना है। जैसे ही बाल्टी पानी से भर जाएगी तो उसको ऊपर खींच लेना, ठीक है? मुलाजमा इसको हिदायत देकर जा चुकी थी। उसने वैसे ही पानी निकालना शुरू किया जैसे मुलाजमा कहकर गई थी। बाल्टी को कुएं में फेंका और जब उसमें पानी भर गया तो उसको ऊपर खींचने लगी, मगर बाल्टी इतनी वजनी थी कि उससे खींची नहीं जा रही थी। उसने थोड़ा सा आगे बढ़कर बाल्टी को खींचना चाहा, मगर तभी उसका पाँव फिसला और वो कुएं में जा गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसको थाम लिया। उसकी चीख उसके मुंह में ही रह गई थी। उसने जल्दी से अपने पीछे मुड़कर देखा तो दानियल मलिक खड़ा उसको घूर रहा था। पागल हो तुम? किसने कहा था इस कुएं के पास आने के लिए? वो दहाड़ के बोला था। समंदर के पीछे हुई। वो मुझसे बेगम साहिबा ने बोला था कि कुएं से पानी निकाल कर लाऊं। उसने झुक के सर से होले से कहा था। आइंदा तुम्हें कोई भी कहे तुम यहाँ नहीं आओगी, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। वो उंगली उठाकर चबा चबा कर बोला था। जी ठीक है, नहीं आऊंगी, उसने सहम कर इस बात में सर हिला दिया था। अब जाओ यहाँ से, वो सख्त लहजे में बोला। समन ने जल्दी से अंदर की तरफ चली गई। पीछे वो वहीं सर हाथों में गिराए बैठ गया। अगर उसको आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो इससे आगे उससे सोचा ही नहीं गया था। समन को कुएं में गिरते देख उसकी सांसें रुक गई थी। उसको ऐसे लगा जैसे वो हवा में मौलिक होकर रह गया हो। उसको अपनी रूह निकलती महसूस हुई थी। उसको खो देने के एहसास से ही उसकी रूह तड़प गई थी। मोहब्बत ने धड़ल्ले से उस पत्थर दिल के शख्स पे कब्जा किया था। कहाँ गई थी तुम इतनी सुबह सुबह? फायजा को अंदर आते देखकर आलियान ने पूछा था। अपने कमरे में गई थी, उसने जवाब देकर अलमारी से अपने कपड़े निकाले। मगर अब तुम्हारा कमरा ये है, तुम वहाँ क्या लेने गई थी? वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो नम आंखों से उसे देखने लगी। प्लीज आलियान, मुझे और मत आजमाएं, कहते साथ वो रो दी। आलियान सुन खड़ा रह गया। वो कैसे रो पड़ी थी? वो तो सबको रुलाकर दम लेने वालों में से थी। अच्छा अच्छा, अब कुछ नहीं कहता, रो मत। वो उसके आंसू पोंछते फिक्रमंदी से बोला था। कल रात भी वो उसके साथ काफी सख्ती से पेश आ चुका था, इसलिए अब वो और कोई भी सख्ती करना नहीं चाहता था। अचानक वो उसके सीने से लगी सिसकियों से रोने लगी। आलियान ने उसको नहीं रोका था। वो चाहता था वो एक ही बार में अपना सारा गुबार निकाल ले। आई एम सॉरी फायजा, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही तुमसे सख्ती से पेश आया था। उसको नर्म पड़ते देख वो भी वापस अपने आप में आ गया था। वो दिल की गहराइयों से उसे चाहता था, उसे यूं रोता हुआ देख नहीं सकता था। तुम बहुत बुरे हो, जालिम हो, वो रूठेपन से बोलती उसे बहुत प्यारी लगी थी। आलियान ने उसको अपने सीने से लगा लिया। अच्छा सूर्य अब नहीं जुल्म करता अपनी प्यारी सी बीवी पे। वो उसके माथे पे लब रखे मोहब्बत से बोला। वो भीगी आंखों से उसे देखने लगी। वो हूबहू दानियाल मलिक जैसा था, बिल्कुल उसका अक्स। वो देखती चली जा रही थी। उसका दिल आलियान मलिक के लिए धड़का था।
ऐसे क्या देख रही हो? बहुत प्यारा लग रहा हूँ क्या? वो शौक से लहजे में बोला था। फ़ायज़ा सटपटा के पीछे हुई और कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गई। वो मुस्कुरा कर रह गया। उसकी थोड़ी-सी सख्ती से वो बदल रही थी। यही उसके लिए बाइस खुशी थी। तुम्हें कुएँ से पानी निकालने को कहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अभी किचन में आई ही थी कि आबदा बेगम नमूदार हो गईं। समन का दिल हलक में आ गया। अब क्या जवाब देती? वो दानियाल साहब ने मना कर दिया था वहाँ जाने से, इसलिए वापस आ गई। उसकी बात पे आबदा बेगम हाथों की मुठ्ठियाँ भींची थी। आज तक किसी ने उनके हुक्म के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की थी, मगर दानियाल मलिक ने ऐसा करके उनकी अना पे कारी ज़रब लगाई थी। अच्छा जाओ, जाकर ऊपर से कपड़े उतार कर लाओ, आंधी आने वाली है। वो हुक्म देकर किचन से निकल गईं। समन जल्दी से छत पे भागी। आंधी शुरू हो गई थी। उसने आधे ही कपड़े उतारे थे कि बारिश भी शुरू हो गई और सारे कपड़े मिट्टी में गिरकर गंदे हो चुके थे। उसने जल्दी से सब उठाना चाहे, मगर हाथ में पकड़े दूसरे कपड़े भी गिर गए। उसकी सांसें रुक गईं। अब न जाने क्या होने वाला था। सारे कपड़े ही मिट्टी में फिर से गंदे हो चुके थे और ये खबर आबदा बेगम तक पहुंच चुकी थी। वो जो पहले ही उबली पर फिर रही थी, अब मौका पाते ही उस पर भड़ास निकालने पहुंच चुकी थी। वो गलती से गिर गए। मैंने उठाने की कोशिश की थी। आबदा बेगम को गुस्से से अपनी तरफ बढ़ता देख वो सहमे हुए लहजे में बोली थी, मगर आबदा बेगम ने आओ देखा न ताओ देखा और रखकर एक उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया, जिससे वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरी थी। कोई काम तुमसे कह लो, वो ठीक से नहीं होता। हर काम में कोई ना कोई गलती कर देती हो। उनका गुस्सा किसी तौर कम होने में नहीं आ रहा था। हवेली के सारे अफराद बाहर निकल आए थे। आज मैं तुम्हें ऐसा सीधा करूंगी कि सारी उम्र तुम कोई भी गलती नहीं करोगी। आबदा बेगम ने कहते साथ दीवार के पास पड़ा लकड़ी का डंडा उठा लिया था। सबने साख नजरों से आबदा बेगम की जानिब देखा था कि वो इस हद तक भी शफाक हो सकती थी। किसी ने सोचा भी नहीं था। घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था जो आबदा बेगम को रोक सकता। मायदा और फायजा ने उनको जाके रोकने की कोशिश की थी, मगर नौरीन बेगम ने उन दोनों को हाथ से पकड़कर रोक दिया। आबदा बेगम ने पूरी कुवत लगाकर समन की कमर पर एक जोरदार ज़रब लगाई थी, जिससे उसकी दिल खराश चीखें पूरी हवेली में गूंज उठी थी। अब करोगे कोई गलती? बताओ, अब करोगी कोई गलती? वो कहते साथ उस पे ज़रब लगाए जा रही थी। वो दर्द सहते-सहते अधमुई हो गई और फिर होश और हवास से बेगाना होती चली गई। आफ़ताब बेगम उस पर नफ़रत की एक नज़र डालकर डंडा फेंककर वहाँ से चली गई थी। फ़ायज़ा और मायदा ने भागकर उसको उठाया था। वो दर्द के मारे बेहोश हो चुकी थी। उन दोनों ने जल्दी से उठाकर उसको कमरे में मुंतकिल किया था और फ़ायज़ा ने फ़ोन करके आलियान को सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया था। "कहाँ है समन? कहाँ है समन?" ठीक 15 मिनट के बाद दानियाल मलिक भागता हुआ हवेली आया था और दीवानावार मुलाज़िमों से समन के बारे में पूछ रहा था। "छोटे साहब, वो अपने कमरे में हैं। मायदा बीबी और फ़ायज़ा बीबी उनको लेकर गई हैं।" तभी एक मुलाजिम ने उसके गुस्से से खौफ खाते कहा था। वो उस मुलाजिम को धक्का देकर भागकर अपने कमरे की जानिब गया। वहाँ समन बेसुध पड़ी थी। मायदा और फ़ायज़ा उसके ज़ख्मों पर मरहम लगा रही थी। "समन, उठो, क्या हुआ है तुम्हें समन?" वो ज़ोर-ज़ोर से उसके गाल थपथपाते हुए बोला था, मगर वो गुनूदगी में होने की वजह से नहीं उठी थी। "किसने समन की ये हालत की? किसने की ये हालत?" वो पूरी कुव्वत से चीखा था। मायदा और फ़ायज़ा को अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। आलियान भी उसकी इस कदर धार भर कमरे में आ चुका था। "भाई, अभी वक़्त नहीं है इन सब बातों का। हमें भाभी को जल्द अस्पताल लेकर जाना चाहिए। देखें, वो बेहोश हैं, नहीं आ रही होश में।" आलियान की बात पर वो समन को बाजू में उठाए बाहर की जानिब भागा था। आलियान भी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और 1 सेकंड के अंदर-अंदर वो समन को अस्पताल ले गए थे। समन के जिस्म पर जा-बजा मार के निशानात थे। उसका वजूद दानियाल मलिक की बाहों में बिल्कुल साख़ पड़ा था। थोड़ी ही देर में वो उसको अस्पताल लेकर पहुंच चुके थे। अंदर गायनी समन का चेकअप कर रही थी। "उनके हस्बैंड कौन हैं? जल्दी अंदर आएं।" तभी डॉक्टर की एक असिस्ट ने आकर उनको कहा था। दानियाल मलिक अंदर की जानिब बढ़ गया। "उनकी ये हालत किसने की है?" डॉक्टर दानियाल मलिक को मशकूक नज़रों से देखते हुए बोली थी, जैसे उसने उसका हाल किया हो। "मुझे नहीं मालूम डॉक्टर, जब मैं घर आया तो ये बेहोश पड़ी थी।" वो आंखों में सुर्खी लिए ज़ब्त से बोला था। "खैर, आपका जो भी पर्सनल मैटर रहा हो, इसमें मैं नहीं बोलूंगी, मगर उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। हमें उनको 2 से 3 दिन अस्पताल में रखना होगा, क्योंकि उनको काफ़ी जगह गहरे ज़ख्म आए हैं।" दानियल मलिक खामोशी से डॉक्टर की तमाम हिदायत सुन रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि जिसने समन की ये हालत की है वो उसके टुकड़े-टुकड़े कर दे। किस कदर बेरहमी से उसके नाजुक जिस्म पर ज़ुल्म ढाया था। उसने आज तक खुद कभी इस तरह उसे नहीं मारा था, तो और कोई कौन होता था उस पे इस तरह सफाकियत दिखाने वाला। 3 दिन के बाद समन को अस्पताल से वापस हवेली लेकर आया था। सब लाउंज में बेचैनी से उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। दानियाल मलिक की गिरफ्त समन बाजवा के हाथ में मजबूत हुई थी। "रुक जाओ वहीं!" आबदा बेगम की रोबदार आवाज़ गूंजी थी। दानियाल मलिक के कदम वहीं थम गए। "किसकी इजाज़त से तुम इस लड़की के साथ 3 दिन अस्पताल में रहे?" वो जलाल से बोली थी। दानियाल मलिक की रगें गुस्से से उभरी थीं। "ये मेरी बीवी है, उसके साथ कहीं भी रहने के लिए मुझे किसी की इजाज़त दरकार नहीं।" वो आज सारे लिहाज बुलाए ताक रखते,
बोला था। आबदा बेगम गुस्से से उठी थी। मत भूलो, ये वनी में आई हुई एक मामूली लड़की है, इसके लिए तुम अपने बड़ों के हुक्म से इनकार करोगे? वो चिंगा रही थी। हाँ, मैं आपके और सबके हुक्म से इनकार करूंगा, क्योंकि ये मेरी बीवी है। मैं किसी को इसके साथ जुल्म करने नहीं दूंगा अब। वो आज समन की ढाल बना था। समन की आंखों में मिर्चें लगने लगी थीं। बस, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, वनी है, जिसकी कोई इज्जत कोई कदर नहीं। वो समन को नफरत से देखकर बोली थी। मैं आज सबके सामने दानियाल मलिक समन बाजवा को वनी के इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। ये आज से और अभी से इस हवेली के बड़े बेटे की बीवी है, जो पूरी इज्जत और एहतराम की हकदार है। दानियाल मलिक के अल्फाज सबको साख्त कर गए थे। आबदा बेगम कदरे जलाल में आगे बढ़ी और खींच कर दानियाल मलिक के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। सारों ने फटी निगाहों से ये मंजर देखा था। पहली बार आबदा बेगम ने इस तरह दानियाल मलिक, इस हवेली के बड़े बेटे पर यूं हाथ उठाया था। तुम हमारी रिवायतों को तोड़ोगे? तुम इस वनी में आई हुई लड़की की खातिर हमारे हुक्म से इनकार करोगे? तुम्हारी इतनी जुर्रत? वो जहरीले लहजे में बोली थी। हवेली के हर तरफ सन्नाटा छा गया था। दानियाल जब्त की इंतहा पे था। हाँ, क्योंकि ये मेरी बीवी है, मैं मोहब्बत करने लगा हूँ इससे। ये वनी नहीं है अब। मैं इसको वनी की रस्म से आजाद कर चुका हूँ। दानियाल मलिक हलक के बल चीखा था। उसके मुंह से निकलने वाले मोहब्बत के इजहार पर सब हैरतज़दा रह गए थे कि दानियाल मलिक को भी किसी से मोहब्बत हो सकती थी। तुम एक वनी से कैसे मोहब्बत कर सकते हो? कैसे? निकल जाओ इस हवेली से। इस हवेली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारी यही सजा है कि तुम इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। तुम्हें किसने हक दिया एक वनी से मोहब्बत करो? आबदा बेगम का गुस्सा अब सातवें आसमान को पहुंच चुका था। सब सांस रोके ये मंजर देख रहे थे। ठीक है, मैं हमेशा हमेशा के लिए हवेली छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता और ना ही मैं अब अपनी मोहब्बत की यहाँ मजीद रहकर तजलील करवा सकता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से और इस हवेली से हर रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर जा रहा हूँ। उसने कहते साथ समन का हाथ पकड़कर कदम बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ा दिए थे। उसके इस फैसले से नाजिया बेगम तड़प के आगे आई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? रोक लें। वो कहाँ जाएगा? ऐसे मत करें मेरे बच्चे के साथ। नाजिया बेगम दानियल मलिक को हवेली से जाता देखकर कर रही थीं, मगर आबदा बेगम ने उनके इल्तिजाओं को रद्द कर दिया था। मायदा, फायदा और आलियान की आंखों में आंसू आ गए थे। उन दोनों को जाता देखकर बाकी सब खामोश तमाशाई बने थे। मलिक साहब और जावेद मलिक एक लफ्ज भी माँ के सामने नहीं बोल पाए थे। आलिया ने दुख से अपनी सफाक दादी को देखा था, जिनसे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी, मगर आज उनकी सफाकी पे उसका दिल रो दिया था। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। दानियाल मलिक चुपचाप ड्राइविंग कर रहा था। वो बेबसी से लब काटे जा रही थी। ये क्या हो गया था उसकी वजह से? काश वो बोल पाती कि वो वनी की रस्म से आज़ादी नहीं चाहती, वो जुल्म की आदी हो गई है। काश वो बोल पाती, कम से कम दानियाल मलिक यूँ अपने उससे दूर तो न होता। वो हर मामले में खुद को कसूरवार समझ रही थी। बात सुने, उसने हिम्मत करके उससे बात करने का सोचा था। वो नहीं चाहती थी इस तरह वो भी अपने से दूर हो जाए। मुसलसल आजमाइश ही उसका मुकद्दर ठहरे। हाँ बोलो, नर्म से लहजे में जवाब मिला था। उसकी हिम्मत बंधी। उसने खुश्क होंठों पे जबान फेरी। आप प्लीज मुझे छोड़ दें, यूं मेरी खातिर अपनों से दूर ना हो। उसने अजियत से आंखें बंद करके बात मुकम्मल की थी। दिल अंदर से तड़पा था। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दानियल मलिक ने अचानक ब्रेक लगाई थी। समन डर सी गई। जी ठीक है, वो हकलाते हुए बोली। दानियल मलिक ने उसको घूरी से नवाजा। समन, मुझसे कभी अलग होने का सोचना भी मत। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। वो समन का हाथ थामे मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था। समन की निगाहें झुक गईं। दिल के वीरान खानों में मोहब्बत की कोंपलें फूटी थी। उसे भी मालूम न हुआ था ये सितम ढाने वाला कब उसके दिल में उतरता चला गया था, कब उसका दिल इस सितमगर का तलबगार होने लगा था। मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती दानियाल, मगर शायद मेरे नसीब बहुत बुरे हैं। उनमें कोई भी खुशी नहीं लिखी गई। उसकी आवाज़ रुंध गई थी, आंखों में नमी उतर आई थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ समन, मुकद्दर का लिखा बदल दूंगा अपनी मोहब्बत से। मुझ पे भरोसा रखो और मेरा साथ दो बस। वो उसके माथे पे लब रखता बोला। समन शर्म से सुर्ख पड़ी थी। दानियाल मलिक ने मुस्कुराकर उसको देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कितना प्यारा घर है, वो हर चीज को प्यार से छूते हुए बोली थी। दानियाल मलिक मुस्कुरा दिया। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये घर तुम्हारा है, आज से तुम इसकी मालिक हो। अपनी मर्जी से जैसे चाहे रहना। आज से मैं भी तुम्हारा। वो शौक से लहजे में बोलता उसको सिमटने में मजबूर कर गया। दानियाल मलिक ने मोहब्बत पाश नजरों से देखा था। मैं भी आपकी हूँ दानियाल मलिक, हमेशा से। वो बस दिल में कह सकी थी। चलो आओ मिलकर सफाई करते हैं, अपनी इस प्यारी सी दुनिया को सजाते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर बोला था। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ सारे घर की सफाई करने लगी। उसने हर चीज को बहुत मोहब्बत से छुआ था और मोहब्बत से सजाया था। एक उम्र के बाद जैसे उसके दिल को करार आया था और यूं ही मोहब्बत से वक्त गुजरता चला गया। दानियाल मलिक सुबह ऑफिस जाता और समन घर संभालती, और जब दानियाल मलिक ऑफिस से आ जाता तो दोनों मिलकर खाना खाते और कभी कभी बाहर घूमने फिरने निकल पड़ते। दोनों एक दूसरे के साथ रहकर खुश थे। तमानियत उनके चेहरे से झलकती थी। मोहब्बत ने दोनों को अपने रंग में रंग दिया था। दानियाल, जरा देखिएगा,
दरवाजे पे कौन है? मैं जरा खाना बना लूं वरना जल जाएगा। समन ने उसको किचन से आवाज लगाई थी, जो टीवी में मगन था। उसकी आवाज पे दानियल मलिक ने उठकर दरवाजा खोला तो वो पत्थर हो गया। सामने आबदा बेगम और सभी घर वाले खड़े थे। बेटा अंदर आने का नहीं बोलोगे? आबदा बेगम लहजे में शफकत से बोली। नहीं, क्यों नहीं दादू, अंदर आए। उसने सबके लिए रास्ता छोड़ दिया था। सब अंदर आ गए थे। नाजिया बेगम भागकर बेटे के गले लग गई। इतने महीनों से वो उनसे दूर था। कैसा है मेरा बेटा? कितना कमजोर हो गया है। वो उसके माथे पे बोसा देते हुए लाड से बोली थी। समन भी उन सब की आवाजें सुनकर किचन से बाहर आ गई थी। वो तो सकते में चली गई थी उन सबको देखकर। अस्सलाम वालेकुम, उसने हिम्मत करके सबको सलाम किया था। आबदा बेगम आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाठी के सहारे चलते हुए उसकी जानिब आई। कैसी है मेरी बेटी? उनके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उनकी इतनी मोहब्बत पे समन रोते हुए उनके सीने से लग गई। आबदा बेगम भी रो दी। सबकी आंखों में नमी उतर गई थी। आलियान भाई के गले लगा, मुस्कुरा दिया। चलो बेटा, अपने घर चलो, हम सब तुम दोनों को लेने आए हैं। वो ज़ईफ़ से लहजे में बोली थी। उनका सारा गुरूर और तनतना वक़्त ने निकाल फेंका था। समन ने उनकी बात पे दानियाल मलिक की जानिब देखा। उसने नम आँखों से इस बात में सर हिला दिया था। सब मुस्कुरा दिए। मलिक साहब ने बेटे को गले लगा लिया। बेटे की जुदाई ने उन्हें भी पल में बूढ़ा कर दिया था। हर तरफ खुशियों का समां छा गया था। दिल से गमों के बादल छटे थे और खुशियाँ मुस्कुरा उठी थीं। समन भागकर सबके लिए कुछ बनाने जाने लगी कि उसको चक्कर आ गया। वो वहीं गिर गई। समन, दानियाल मलिक ने भागकर उसको थामा था। जल्दी से डॉक्टर को फोन किया गया। घबराने की कोई बात नहीं, ये मां बनने वाली हैं। डॉक्टर के मुंह से अल्फाज निकले ही थे कि आबदा बेगम ने खुशी से समन को गले लगा लिया। मुबारक हो दादो, आपके दोनों पोते बाप बनने वाले हैं। आलियान चहकते हुए बेबाक अंदाज में बोला था। समन और फायजा शर्मा गई थी। बाकी सब कह कहा मारकर हंस दिए। दानियाल मलिक भी समन को शर्माते हुए देखकर हंसता चला गया था।